हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग? Once again, a very good morning to all the viewers and subscriber and supporter and all my team members. I welcome you from the Physics Course family. So today we will start a very important topic, that is numerical problems on the center of mass topic. We will solve few problems today. Clear? So till now we cover a certain topics like definition of center of mass, how to calculate the center of mass in various objects. Clear? So we cover so many concepts till now, but it's now we should know how to apply that concept in different applications. So we can know how to apply certain topics and certain concept which we read in different application through these numericals. Clear? Now see first numerical. What is the पहला numerical क्या है आपका? Just see. Just see and try. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा and try to solve by your own. Clear? Now see, this is the right angle triangle and we are having a system of three particles. One particle is having the mass 1.5 kg, another particle is having the mass 0.5 kg, another particle is having the mass 1.0 kg. Since these are placed at the corners of the right angle triangle, clear? If you know this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, then this would be 5 centimeter. Clear? समझ आ गया? Now इसमें कुछ नहीं करना होता, किसी एक सर्टेन पार्टिकल को क्या लेना पड़ता है आपको? You just need to take the origin. आपको origin कंसीडर करना ही पड़ेगा. मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज. Clear? समझ आ गया आप लोगों को? Now see, this is to be the, I consider this particle to be that origin, and this is coordinate A, this is coordinate B. So its coordinate would be 0, 0. This coordinate is 4, 0, and this coordinate would be 0, 3. Since this is the origin, so this would be x-axis, this is y-axis. So it is very simple. मैंने आपको discrete system का center of mass का expression बताया था, how to solve. कैसे solve करते हैं आपको बताया था. Summation x, center of mass का location बताना आपको इसमें. Then x क्या होगा? Summation of mi xi. I is equal to 1 से 3. How many particles? 3. Summation of total mass. Summation mi. I is equal to 1 से 3. Clear? अब देखिए, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3. So you can easily calculate what is x mass of this into its x1 coordinate. I can just write here again. Just please see, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by total mass. क्लियर? अब देखिए यहां से बहुत आसान है. m1 मास कितना दिया है? 0.5. इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 प्लस x1 कोऑर्डिनेट इसका कितना है? देखो 1. x1 कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 0. x2 किसका माना मैंने? इसको x2 माना है. इसका x1 कोऑर्डिनेट क्या है? 4 प्लस 1.5. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x. 0 डिवाइड बाय टोटल मास 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1. क्लियर? यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज 4 डिवाइड बाय 3. यू गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इन द सिमिलर वे यू विल कैलकुलेट. आप ही को कैलकुलेट करना है, आई विल नॉट कैलकुलेट. यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कांसेप्ट हाउ टू कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. I will write the expression. You can just note down and try to solve. m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by total mass. Clear? Note down this problem. We are considering a system of three particles. इनका center of mass कहाँ होगा? You just need to calculate. मैंने आपको ये सारा concept पहले पढ़ा चुका हूँ. Now you need to apply these concepts. Clear? So you can note down this problem. Clear? Now I will move to the next problem. Just write down fast.
the density of a linear rod of length L, the density of rod of linear length L varies as, next problem, the density of the linear rod of length L, एक linear rod है आपका, there is a linear rod of length L, clear, we have a rod of length L, linear rod of length L, its density varies as a plus bx, clear, is it clear? Okay, now see, question is asking the center of mass, एक रॉड है, क्लियर, ये आपको रॉड दे दी. Now you just need to calculate the center of mass of this. Says this is a continuous distribution of mass. Continuous दिख रहा है आपको? कराया था एक्सप्रेशन आपको कैसे करना होता है, कैसे एलिमेंट लेते हैं आपको बताया था पूरा. x क्या है? Where x is the, x क्या देखिए, where x is the distance from the left hand. Distance from the left hand. ये मैं बता चुका हूँ आपको. Distance from left hand क्या होता है? देखिए, ये मैंने एलिमेंट ले लिया. जस्ट सी, बहुत आसान है. एलिमेंट लिया मैंने, क्लियर. दिस इज एट अ डिस्टेंस x, दिस इज एट अ डिस्टेंस x प्लस dx. एक ये रॉड है आपका, क्लियर. इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक कितना है, दैट इज l. इसका मास क्या है, इसका मास जो दिया है टोटल मास स्मॉल m, क्लियर. We will calculate. This is the origin, so this is x, this is y. Since density vary कर रही है x के साथ, then we can't calculate directly. We need to integrate. Clear? तो फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने आपको, x is equal to integral x dm divided by integral dm total mass. Clear? बताया था आपको ये चीज मैंने. अब देखिए x तो आपको पता है, x what is x? X is the location of that element which we consider. dm कैसे निकालेंगे, dm is equal to mass is equal to volume into density. Density दिया हुआ है आपको रो into volume. Volume क्या होता है, area into thickness. एलिमेंट की थिकनेस क्या है, dx. क्लियर, यहाँ तक समझ आया. इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा. समझ आ गया. नाउ देखिए, you will try by your own. I can tell you the approach because आप लोग जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. तो सी इंटीग्रल x dm रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx. a डैश आई कैन टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय इंटीग्रल dm. dm इज रो a डैश इनटू dx. क्लियर, यहां तक समझना है. एक यूनिफॉर्मली रॉड है आपका जिसका स्ट्रेट लेंथ क्या है l. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास. वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम. तो देखिए यहां से I can write here, देखिए आप देखिए यहां से वेरी वेरी सिंपल. x रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है a प्लस b इंटू एक्स dx. क्लियर, यहां तक समझना है आपको. अब देखिए डिवाइड बाई इंटीग्रल कितना दिया हुआ, रो इंटू रो क्या, a प्लस बी एक्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास क्या होता है इंटू dx. क्लियर, देखिए यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यहां भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा. a डैश आई फॉरगेट टू राइट. क्लियर, आप लोग नोट कर सकते हैं. क्लियर, कुछ दिक्कत हो बताओ. a डैश से a डैश कैंसिल हुआ आपका. क्लियर, नाउ सी a डैश से a डैश कैंसिल हो, लिमिट कैसे पुट करना, देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये dx हो गया आपका, डिवाइड बाई a प्लस बी एक्स इंटू dx. क्लियर, अब देखिए एलिमेंट क्या है, x पे तो मूव कर रहा है, तो लिमिट कहां से कहां तक हुई, 0 to l. बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन घर पे सॉल्व कर लेना, ट्राई करना. अगर नहीं आता देन पुट इन कमेंट, आई विल ट्राई एंड सॉल्व. क्लियर, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने आप से सीखें करना. क्लियर, सो जस्ट
note down this problem, and whatever the solution you want to note, I am telling you the answer. After solving this, you can get the answer. Just note down the answer. You can try at your home. X coordinate will be 3al 3al plus 2bl square divided by 3 into 2a plus bl, 2a plus bl. क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए ये बहुत अच्छा, ये आपका आंसर है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। x क्या है? आंसर जो आएगा आपका 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 2a प्लस bl। क्लियर? ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। x टू द पावर n dx क्या होता है इंटीग्रेशन? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और c भी होता है क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल है? इंडेफिनिट। क्लियर? सो यू कैन जस्ट नोट डाउन एंड ट्राई एट योर होम एंड टेल मी if you find any difficulty. Clear? So please note down. Then we will come to the next problem. Clear? Have you note down? Just move to the another problem. Write down. Consider a two particle system. Consider a two particle system. Write down another problem. Consider a two particle system with the particles. Consider a two particle system with the particles. You can just note down. Consider a two particle system with the particles having mass, with the particles having mass, m1 and m2. Clear? Full stop. If the first particle is pushed by a distance, if the first particle is pushed through a distance d, towards the center of mass, okay, towards the center of mass. Clear? Comma, you just need to calculate by what distance should the second particle, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position. इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. क्लियर? यू कैन जस्ट नोट डाउन.
Clear? So note down this problem and we will see how to solve this problem. देखो प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन क्या है हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं है. क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपर्ली. क्या कह रहा है? कंसिडर टू पार्टिकल सिस्टम. यू कैन जस्ट मेंशन हियर this is a two particle, one particle is here. Just see. This is one particle, this is another particle. Clear? ये पार्टिकल है, इसका मास क्या है? m1. इस पार्टिकल का मास क्या है? m2. So this is a system of two particle. Question कह रहा है consider a two particle system with the particle having mass m1 m2. आगे क्या कहता है? If the first particle push toward distance d. Clear? Now see m1 m2 दिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये रहा. क्लियर? ये c है, ये p है. लेट अस सपोज ये पॉइंट क्या होगा? लेट अस सपोज दिस इज a. क्लियर? अब देखिए सेंटर ऑफ मासेस का डिस्टेंस क्या है? pc. pc डिस्टेंस कितना दिया है? नहीं दिया तो मान लेते हैं x1. ये डिस्टेंस क्या है? x2. क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कहता है? If the first particle is pushed through a distance d. इस पार्टिकल को आपने d डिस्टेंस मूव कराया तो सेकंड पार्टिकल को कितना मूव कराएंगे कि सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन पकड़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि आपका सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे होना चाहिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले उसने बोल दिया सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए. इट मींस कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? सेम, जैसे पहले थे वैसे अब. क्लियर? नाउ सी. इनिशियली हमारा पार्टिकल कहाँ थे? x1 डिस्टेंस x2 डिस्टेंस थे. तो हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट. देखो ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ पहले. I already told you the concept of center of mass of system of two particles. Now just see how to apply that. m1 into mass of first particle into its distance from the center of mass. कितना डिस्टेंस है? x1, which is equal to m2 multiply its distance. Equation first. When it moves, let us suppose it moves to a distance. Now center of mass वही होना चाहिए. क्वेश्चन में कहा गया है यही है सेंटर ऑफ मास. कोई नहीं, हमने वही बना दिया. अब ये कहता है कि ये पार्टिकल d डिस्टेंस आगे मूव करता है. d डिस्टेंस आगे चलता है ये पार्टिकल. क्लियर? सेकंड पार्टिकल को हम कितना मूव कराएं कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ रहना चाहिए? इट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन. क्लियर? लेट अस सपोज क्वेश्चन में बोला है इसको d डिस्टेंस मूव कराया गया, तो अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? बताइए. ये डिस्टेंस d मूव कराया है. नाउ इट्स डिस्टेंस वुड बी x1 माइनस d. क्लियर? ये पार्टिकल पहले यहां से इसको d डिस्टेंस शिफ्ट करा गया. नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी x1 माइनस d. इस पार्टिकल को मान लीजिए हमने कहा कितना मूव कराया? d डैश. यहां मूव करा दिया. अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? x2 minus d dash. Let us suppose I move it to be the distance d dash. Very very simple. Now see, हमें ये तो निकालना है d dash कितना होगा. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितना मूव कराया सेकंड पार्टिकल को. तो हम लोग जानते हैं. और सेकंड कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये थी, हम लोगों ने यहाँ लगा दिया. पहले कितना था सेंटर ऑफ मास इस कंडीशन में? ऊपर वाली में x की वैल्यू कितनी थी? देखिए यहाँ हमने निकाला, ये निकला फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इन द सिमिलर वे m1 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस है? x1 माइनस d इज इक्वल टू m2 इनटू इट्स डिस्टेंस. नाउ इट इज x2 माइनस d. इक्वेशन सेकंड सॉल्व करिए इसको. m1 x1 माइनस m1 d इज इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 d डैश. क्लियर? d डैश. समझ आ गया? था कोई दिक्कत? बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे बताइए. नाउ सी, देखिए m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 फर्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है आपको.
so it will be cancel out. So m1d is equal to m2d dash. तो यहां से आप d dash निकाल सकते हैं, ये तो पूछा था क्वेश्चन में आपसे, m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाई d। आंसर मिल गया आप लोगों को? कितना डिस्टेंस मूव करा है इसको? इतना। ये तो जनरल आपको ही प्रूव करा दिया मैंने। अब IIT JEE में क्या करता है वो, m1 m2 d की वैल्यू दे देता है and then you need to solve and tell me। IIT JEE में कुछ नहीं करेगा, कुछ नया प्रॉब्लम नहीं आता, सिंपल m1 m2 d को वेरी करा देता है, वो बता देता है m1 इतना, m2 इतना, d इतना है, बताइए d डैश कितना होगा। अगर किसी को यही नहीं पता ये कैसे सॉल्व करना है तो हाउ कैन अ पर्सन सॉल्व? क्लियर? सो यू कैन जस्ट नोट डाउन, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन टेल मी। कुछ नहीं था, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, कंसीडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, क्वेश्चन की तरह इसको हमने मूव कराया, मूव कराने के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसका लोकेशन चेंज नहीं हुआ। क्लियर? क्वेश्चन जैसा कहा गया वैसा मैंने पकड़ा और सॉल्व कर दिया, कुछ था नहीं। तो हमेशा याद रखिए IIT JEE की प्रॉब्लम बड़ी होंगी लेकिन बहुत आसान होगी, कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। ठीक है? सो यू कैन जस्ट नोट डाउन। ओके ओके, यू कैन नोट डाउन। सो आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम इन होमवर्क, यू कैन जस्ट नोट डाउन, और मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ग्रुप पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू डोंट नो द आंसर नथिंग, नो वरी। क्लियर? हम लोगों को कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वी कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्पिंग अदर्स। ओके, यू कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। A cubical block of ice, a cubical block, a cubical block of ice of mass m, ice of mass small m, and h means side, cubical block का साइड कितना दिया है? L। क्लियर? is placed in a large tray having mass capital M। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? प्लीज स्टॉप। if the ice melts, clear? If the ice melts, comma, how far does the center of mass of system, center of mass of the system क्या है? ice plus tray, center of mass of the system ice plus tray come down, ice plus tray come down। okay, so I am giving you the figure, you can just note down that figure। okay, just note down this problem, then I am giving you the figure and please try at your home। इसको ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बता सकते हैं। क्लियर? बट मैं क्यों दे रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना माइंड को शार्प करें और ट्राई टू सॉल्व, फर्स्ट ट्राई बाय योर ओन। ये आपका ट्रे है, ये आपका ट्रे है। क्लियर? इसमें क्या रखा है? आपका क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्यूबिकल ब्लॉक रखा है। क्लियर? इसका लेंथ L दिया है, साइड लेंथ एज लेंथ कितना दिया है? L। इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, ये मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास x1 डिस्टेंस पे, इसका सेंटर ऑफ मास x2 डिस्टेंस पे।
क्लियर? कंबाइंड सिस्टम यानी अब देखिए बहुत दिक्कत होगी, ये बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसको बड़ा नहीं देखना, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड ट्राई टू थिंक। मैंने क्या पढ़ाया था, इस बड़ी चीज को क्या मान लेंगे, सिंपल सेंटर ऑफ मास, एक सर्टेन पॉइंट, सिर्फ पॉइंट है ये ट्रे कुछ नहीं है, एक पॉइंट है सिंपल। ये आइस क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल एक पॉइंट है, कितना मानो बस। क्लियर? नाउ ये आपको पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, सेंटर ऑफ मास पता है, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट ट्राई एट योर होम, क्लियर एंड फोकस्ड। नाउ सी, इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, लेट अस सपोज वो कहां होगा, एक्स डैश पे, यहां पर मैं यहां मान लेता हूं, ठीक है। ये कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, कितना मैं हिंट दे रहा हूं बस आपको प्रॉब्लम करना, एक्स पर है कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। क्लियर? नाउ यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट हाउ फार दिस सेंटर ऑफ मास गोज डाउन, यानी शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। जब आइस मेल्ट हो जाएगी तब क्या होगा, एक्स का वैल्यू, जब आइस मेल्ट नहीं हुई तब एक्स का वैल्यू क्या है, तो आपको सिंपल बेसिकली एक्स माइनस एक्स डैश निकालना है। एक्स क्या है, जब आइस मेल्ट नहीं हुई तब कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां था, एक्स, एक्स साइड पर। जब आइस मेल्ट हो गई तब कितना था, एक्स डैश, हमारा सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम का। क्लियर? तो आपको ये निकालना है कितना शिफ्ट हुआ, यानी कितना वो हाइट डिक्रीज हुई, हाउ मच इट गोज डाउन। क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर सच सपोर्ट, आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए। प्लीज कीप मोटिवेटिंग अदर्स, कीप हेल्पिंग अदर्स, हेल्प करिए, आगे बढ़िए एंड always help others, always provide resources to others। जिसके पास resources नहीं है, कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, किसी को भी। आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पढ़ने को नहीं किताब है, यू कैन प्रोवाइड क्लास, यू कैन प्रोवाइड बुक्स, you can provide your knowledge to society your, because हमारी जॉब सिर्फ घर तक नहीं है, our job is to uplift the society, because society, अगर society उठेगा our country grow, if country grow then countryman grow। clear? so keep helping, keep motivating others, keep learning, learning होना चाहिए पूरी लाइफ में, because life means learning। so keep learning, keep helping, keep motivating others। thanks a lot once again, warm welcome to all, thank you।